Okay, so let's start today's class. In previous class I told you about the notations, how to write the notations for level annuities, okay, and I also told at the end of the class that for the increasing or decreasing annuity you can simply use that I letter in front of A, okay. So today we will be doing question 6.1 basically from our practice questions, and in that way I have chosen a question in which all the types of increasing annuities are basically covered, okay, so that you are able to understand कि इन सबको लिखते कैसे हैं. Is this clear? Open up your laptops, open up the keyboards, give me a yes if everything is done, and then we can start writing this. Come on, quickly give me a yes अगर आपका लैपटॉप वगैरह सब ओपन है and you are ready to type with me. Dhruv, Kshitij, Mithun. Okay, Mithun is ready. Dhruv and Kshitij. Okay, Tanvi is ready too. Okay, so let's start. So we have to basically calculate IA 60, IA due 60, IA bar 60, I bar A bar 100 at I is equal to 9 percentages. No problem, let's start. So yes, basically, okay, ready. So yes, let's start with it. So I will be talking about one equation from equation editor, one equation from normal equation, okay. So you can suit yourself accordingly. So we are doing 6.1 question and first part. So we are doing first A. So what is the A? IA 60. So alt equal to get this equation, brackets IA, we have simple IA, then we have 60 in bars, right. Since 60 is not a single digit, it's 2-digit number. If अगर मैं brackets use नहीं करती हूँ तो क्या होगा, सिर्फ 6 के ऊपर बार आ जाएगा या 0 के ऊपर बार आ जाएगा, बट मुझे 60 के ऊपर बार चाहिए. That's why I would use 60 के I would use brackets before and after 60. ठीक है, उसके बाद मुझे ये 60 कहाँ चाहिए, मुझे सबस्क्रिप्ट में चाहिए. So equation editor में सबस्क्रिप्ट में जाने के लिए what do I use? I use this underscore sign. So underscore brackets 60. For bar मैं क्या लिखूंगी, बैकस्लैश बार स्पेस बार. बताया था जब एक बार स्पेस देते हैं तो साइड में आता है, अगर एक बार और स्पेस दूंगी तो पूरे के ऊपर आ जाएगा, राइट. फिर अगेन स्पेस दूंगी तो वो सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा. देन आई यूज माय बैकवर्ड एरो की. बैकवर्ड एरो की से मेरा दिख गया ये बॉक्स दिख रहा है ब्लू और ग्रेइश कलर का आ गया. इट मींस अब मैं अपना ये वाला वर्टिकल वो लगा सकती हूँ बार, राइट. आगे जाने के लिए अगर मैं स्पेस देती रहूंगी तो मैं ऑलरेडी सबस्क्रिप्ट में डील कर रही हूँ, बट आई हैव टू गो टू अपवर्ड डायरेक्शन, सो मैं फॉरवर्ड एरो की करूंगी. सो यू कैन सी कि हम अपने ग्रेइश बॉक्स से एस्केप कर चुके हैं. सो दिस इज द नोटेशन. इफ दिस इज डन गिव मी अ क्विक यस इन द चैट रूम. If this is done, give me a quick yes in the chat room. Okay. ठीक है, सबका हो गया है. अब आगे आते हैं इसका फॉर्मूले में. फॉर्मूला क्या होता है, A due n minus NVN, right. So A due 60. So firstly I have to use brackets for my numerator because मेरे numerator में भी दो terms है. Then I have to go to the denominator, okay. अब numerator में क्या है, सबसे पहले A due 60 है. So A due के लिए we have 2 dots. So 2 dots के लिए what was the code, क्या कोड लिखूंगी मैं 2 dots के लिए, it was DDOT, right. स्पेस दूंगी तो एक बार आएगा, स्पेस दूंगी तो साथ में आएगा. देन आई हैव टू गो टू डिनोमिनेटर, अगेन 60 वाली चीज है. सो ब्रैकेट्स यूज करूंगी, बार 2 बार स्पेस बार, तीसरी बार डालने पे सबस्क्रिप्ट. फिर उसके बाद मैं बैकवर्ड एरो यूज करूंगी ताकि मैं सबस्क्रिप्ट में पहुंच जाऊं. आई यूज दिस बार एंड देन माई फॉरवर्ड एरो की ताकि मैं नॉर्मल स्क्रिप्ट में आ जाऊं. देन वी हैव 60v60 टाइप करने में तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी. Okay, brackets close. This is my numerator done.
फ्रैक्शन में जाने के लिए आई यूज माई नॉर्मल स्लैश, आई यूज माई आई स्पेस बार. Got this equation? Now we can put in our values. So what are the values? 12.043 minus 60 star 1.09 raised to the power minus 60. So minus 60, since it is considered as one term only, then divided by 0.09. Okay? So this is equal to 130.02. I will bold out the final answer. Is this clear? Now coming to our second part. As I said, this is not a technical class. We are not focusing how did we get the value of ADU60. Okay, that's your task, guys. I am just stating, okay, this is the value. You can simply type the value. Okay. Now the next part says we have to calculate IADU60. So try attempting IADU60 first. And if you are done with IADU60, tell me. Try attempting IADU60 yourself. Quickly. अगर हो जाता तो give me a yes in the chat room. अगर आप टाइप कर पा रहे हो तो. Okay, so either I can directly copy paste the things from above or I can write the whole sum equation once again. So दोनों चीज कर लेते हैं. So brackets I A, ड्यू लगाना है, किसके ऊपर ड्यू लगाना है? A के ऊपर लगाना है ना. So मैं लिख सकती हूँ A के बाद D D O T D डॉट, आगे A के ऊपर ड्यू, ब्रैकेट्स क्लोज करके 60 वाली चीज सेम करनी है. So अंडरस्कोर ब्रैकेट 60 बैकस्लैश बार, दो बार स्पेस बार, एक बार और backward arrow key, horizontal bar and this. Okay, otherwise what could I have done is I have just copy pasted this whole thing. I have just pasted this here. अब मेरे को पता है A के आगे मुझे D डॉट चाहिए, so backslash D डॉट. So look, मैं ये भी कर सकती थी. ठीक है? Both are clear. So अब इसका वैल्यू क्या होगी? Either you can use the whole thing by D. So मैं whole चीज copy paste कर लूँ. I am also telling you how to use your copy paste because मेरे फॉर्मूले में सिर्फ D चेंज होता है, इस वाले फॉर्मूले में सिर्फ D चेंज होता है. So I can write here D and I can do the rest of the calculation. Okay, again bolding out the final answer. Is this clear? Moving forward to our next notation. So next notation है I A bar 60. Please note that जब continuous distribution में हम आते हैं increasing annuities में, तो एक notation में होता है सिर्फ A के ऊपर बार, एक notation में होता है आपका I के ऊपर भी बार होता है और A के ऊपर भी बार होता है. Okay, so उसको कैसे टाइप करेंगे? How do we type this I bar? पहली वाली notation कर लेते हैं, I और A के ऊपर बार simple. So alt equal to I and A के ऊपर बार है तो बार, दो बार स्पेस and this. या फिर मैं दूसरी चीज क्या कर सकती थी, मैं ऊपर से पूरा कॉपी पेस्ट कर लूं और A के बाद जहां पर मैंने D डॉट लिखा था ना, इस बार मैं बार लिख दूं. I A in brackets and then bar. Okay. So अगर देखो मिथुन, अगर आप I A को पहले ब्रैकेट्स में लिखोगे फिर बार लगाओगे तो बेटा उसका मतलब है वो I A के पूरे ऊपर बार आएगा. ठीक है, जबकि हमारी नोटेशन में सिर्फ A के ऊपर बार होता है ना. पहली नोटेशन हम जो कर रहे हैं उसमें सिर्फ A के ऊपर बार होता है. इफ यू आर डूइंग दिस थिंग, यू आर टेलिंग मी दिस, राइट? सो इससे I A के पूरे के ऊपर बार आ जाएगा, जबकि नोटेशन में ये नहीं होता है. ओके, क्लियर? नाउ मिथुन, इज द डिफरेंस क्लियर? हाँ, फोर द होल वाली थिंग पे भी आते हैं. So this is this and I, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं I by डेल्टा की टर्म्स में बोलूँ, it is I by डेल्टा IA 100. So I backslash normal slash backslash DELTA. प्लीज मेक श्योर अगर आप कैपिटल D यूज करोगे तो डेल्टा की नोटेशन अलग आएगी, स्मॉल d यूज करोगे तो डेल्टा की नोटेशन डिफरेंट आएगी.
मुझे ये वाला डेल्टा चाहिए, दिस इज स्मॉल लेटर. ओके, सो I by डेल्टा वी हैव IA 100. सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं ये IA कॉपी पेस्ट कर लूं. ठीक है, मैं यहाँ पर ये पेस्ट कर दूं और मुझे बस इसका नोटेशन चेंज करना है, तो मैं 6 की जगह 10 लिख दूं. ओके, this is easier copy paste and then you can write down the values. So value will come out to be 1.044354, whatever is the thing. I'm not calculating this, this is your task. Control B because I want my final answer to be bold out. Clear? Coming to our next notation, which is I bar A bar. Okay, we have the notation I bar A bar. So जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे लिख लो, because I के ऊपर बार चाहिए then A के ऊपर बार चाहिए, right? So my notation is I bar space A bar space. Okay, this is the notation. बेसिकली हमारे पास होता क्या है, इंडिविजुअल्स के ऊपर बार नहीं होता है, हमारे ऊपर हमारी नोटेशन ना ये नहीं होती जो मैंने लिखी थी, आई बार ए बार नहीं होती है, बेसिकली ए के ऊपर बार होता है एंड आई ए के होल के ऊपर बार होता है, राइट? अगर मैं आप लोगों को बोलूं मेरा नोटेशन क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, व्हाट इज माई नोटेशन, मेरा नोटेशन ये होता है ना, आई के ए के ऊपर बार एंड होल के ऊपर बार, राइट? सो अगर मैं आई बार ए बार लिख रही हूँ तो मेरी नोटेशन तो ये बन रही है, दिस इज डिफरेंट थिंग. डिफरेंस क्लियर है? व्हाई कांट आई डायरेक्टली यूज आई बार ए बार? नोटेशन डिफरेंस क्लियर है? गिव मी यस इफ इट इज क्लियर. ठीक है, सो हमें ये वाली नोटेशन लिखनी है. हाउ डू आई राइट? मेरे को दिख रहा है पहले ए के ऊपर बार है और फिर पूरी टर्म के ऊपर बार है. सो सबसे पहले तो मैं ए के ऊपर बार लगाऊंगी, फिर उसके बाद पूरी टर्म के ऊपर बार लगाऊंगी, राइट? सो लेट्स डू इट. सो मेरे को दिख रहा है सबसे पहले तो ए के ऊपर बार है, सो आई विल डू इट इन बाद में. सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट्स है कि मेरा ब्रैकेट दिखे, क्योंकि अगर मैं ये वाला एक सिंगल ब्रैकेट यूज करूंगी हमारे पास इंडिविजुअल ए के ऊपर भी तो बार होता है. सबसे पहले तो कैपिटल ए नहीं आएगा, स्मॉल ए आएगा. ओके, दूसरी चीज इंडिविजुअल के ऊपर भी तो बार होता है. अगर तुमने सिर्फ ये नोटेशन लिख दी आई ए बार तो सिर्फ वो होल बार आएगा, ठीक है? एंड दूसरी चीज, अगर आप सिंगल ब्रैकेट्स यूज करते हो ना तो बेटा जो बार है वो ये समझेगा कि आपको होल के ऊपर चाहिए, तो वो ब्रैकेट्स नहीं देगा आपको नोटेशन में. सो वी हैव टू यूज डबल ब्रैकेट्स. ओके, सो डबल ब्रैकेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. सो आई राइट आई ए, सबसे पहले मुझे ए के ऊपर बार चाहिए, ब्रैकेट्स क्लोज, फिर मुझे इस पूरी टर्म के ऊपर बार चाहिए ना, एंड देन ब्रैकेट्स क्लोज. क्लियर हुआ? इज द नोटेशन क्लियर? Are you able to write this notation now? Give me yes, try attempting. एक बार और बताती हूँ. सबसे पहले सिंगल ब्रैकेट, एक ब्रैकेट खोला इसलिए कि मेरे ब्रैकेट्स दिखें, दूसरा ब्रैकेट्स ताकि वो इंटरप्रेट कर पाए कि मेरे को होल के ऊपर बार चाहिए, आई. अब अंदर ब्रैकेट में मुझे क्या दिख रहा है, मेरे ब्रैकेट के अंदर भी ए बार है, सो ए बार डबल स्पेस ब्रैकेट्स क्लोज. अब मुझे इस पूरी नोटेशन के ऊपर बार चाहिए, दैट्स व्हाई मैं एक बार और बार लगाऊंगी. ओके, एंड देन आई क्लोज माय ब्रैकेट्स. ठीक, तो अब इसका फॉर्मूला इफ आई नोट डाउन, सो इट विल बी ए बार 100, ए बैकस्लैश बी ए आर बार, देन अंडरस्कोर 100, फिर 2 डिजिट से 1 डिजिट से ज्यादा है, सो आई यूज माय ब्रैकेट्स. देख रहे हो ना, जब मैं ब्रैकेट यूज कर रही हूँ और बैकस्लैश बार लिख रही हूँ तो मेरा ब्रैकेट रिमूव हो रहा है. इसका मतलब है दैट इज इंटरप्रेटिंग कि मेरे को मेरा जो होल बार चाहिए वो उस चीज के ऊपर चाहिए. सो अगर मुझे मेरी नोटेशन में ब्रैकेट्स भी चाहिए देन आई हैव टू यूज डबल ब्रैकेट्स. ठीक है, यू डोंट हैव टू लर्न द नोटेशन. समझ लो कि इक्वेशन राइटर कैसे वर्क करता है, फिर आपको नोटेशन लिखना क्लियर हो जाएगा. कोई भी नोटेशन आ जाए यू वुड बी एबल टू राइट इट.
देन माई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बार, मैं आगे गई एस्केप करने के लिए, देन आई हैव 100 v रेज टू द पावर 100 आई गेस, yes, brackets close, divide by delta, so backslash delta, then I can put in the values. This is coming out to be 134.42. That's up to your calculation. Clear? Is this clear? Give me yes in the chat room if this is done. ओके, मिथुन का हो गया है, ध्रुव, क्षितिज, तन्वी हो गया है, ध्रुव, क्षितिज हो गया है क्या? आर यू डन विद इक्वेशन? ठीक है, नाउ बिफोर मूविंग टू आवर सेकेंड पार्ट जिसमें IAS है, वो आप IAS बहुत आराम से कर पाओगे, बट लेट मी टॉक अबाउट वन मोर थिंग इज कि हमारा ना टेबल्स बुक में वैल्यूज होती है, राइट? फॉर IA, एनुइटीज, इंक्रीजिंग एनुइटीज, हमारे पास कुछ सर्टेन के लिए टेबल्स बुक में वैल्यूज होते हैं। तो सम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे डोंट यूज कैलकुलेटर बट दे यूज द टेबल्स बुक। सो जब वो टेबल्स बुक यूज करें, दे हैव टू गिव द रेफरेंस टू टेबल्स बुक बिकॉज डेसिमल्स में डिफरेंस आता है। So how do we write this this reference in the tables book? There are two methods. Either, for example, you have done this whole formula thing. Now you have to calculate, for example, here. So I would have just done. I would have splitted my equations. Okay. So now I would write taking the value from tables book. You just have to write this thing. Taking the value. आप किसकी वैल्यू ले रहे हो, बिकॉज यू कुड हैव डायरेक्टली टेकन द वैल्यू ऑफ IA60 एज वेल, यू कैन हैव टेकन द वैल्यूज ऑफ IADU60 और ADU60 कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ 860। ओके, सो वो चीज लिखनी है कि आप किसकी वैल्यू ले रहे हो और फ्रॉम टेबल्स बुक। इफ यू कुड मेंशन द पेज नंबर देन बहुत अच्छा है, नहीं भी कर पाते हो कोई बात नहीं, इतना जरूर लिख देना टेकिंग द वैल्यू फ्रॉम टेबल्स बुक, सो दैट दे नो कि आप कैलकुलेटर से नहीं कैलकुलेट कर रहे हो, यू आर टेकिंग द टेबल्स बुक वैल्यू। सो वो डिफरेंस जो अप्रोक्सीमेशन डिफरेंस आ रहा है, दे वोंट पेनलाइज यू फॉर दिस। ओके, ये भी टाइपिंग के अंदर ही आता है। या फिर अगर आप ऐसे पेज ब्रेक नहीं करना चाहते हो या फिर आपने पूरी कैलकुलेशन कर ली है और उसके बाद आप वो फ्लो नहीं तोड़ना चाहते हो, सो यू कुड हैव यूज द टैब फंक्शनैलिटी। सो आप टैब फंक्शनैलिटी में लास्ट में जाके लिख सकते हो वैल्यू फ्रॉम टेबल बुक। ओके, इज दिस रेफरेंसिंग क्लियर? और अगर आपको वैल्यू फ्रॉम टेबल्स बुक में लिखना तो यू कैन राइट टेबल्स बुक पेज नंबर दिस। सो दिस इज कि अगर आपका अप्रोक्सीमेशन में डिफरेंस आ रहा है, कैलकुलेटर और टेबल्स बुक में डिफरेंस आता है, सो दैट एग्जामिनर कैन नो कि आपने टेबल्स बुक से वैल्यू लिया एंड दे वोंट बी पेनलाइजिंग यू। इज दिस क्लियर? सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन टाइपिंग एज वेल। रेफरेंसिंग देना भी टाइपिंग के अंदर ही आता है। ओके, सो व्हाइल यू आर राइटिंग योर आंसर्स इन द एग्जाम, अगर आप टेबल्स बुक्स यूज कर रहे हो सो रेफरेंस देते रहना, then only you will be able to remember the thing कि हाँ referencing देनी है एग्जाम में। Clear है? Give me yes. Okay, very good guys. So next move forward to our next part. What does the next part of the question say? We have to calculate IS1 and ISDU10, right? So yes, let's calculate the IS1. So IS1 is basically calculating the IS1 में कोई calculation नहीं है, we could have just write the notation. So notation लिख लेते जल्दी से IS1 की। So try writing at your own IS1 की notation लिखना start करो and then tell me लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। So alt equal to brackets IS then backslash bar, बार आएगा नहीं, we have underscore 1 इन दिस, तो 1 के ऊपर मैं ब्रैकेट लगाऊं ना लगाऊं एक ही बात है, बिकॉज मेरी सिंगल डिजिट है, ठीक है, तो वो 1 के ऊपर ही बार लेगा। तो मैंने भेजा एंड मैं हॉरिजॉन्टल बार लगा, वर्टिकल बार लगाया एंड देन कम टू नॉर्मल स्क्रिप्ट, दिस इज इक्वल टू 1 ओनली। ओके, नाउ कमिंग टू आवर सेकंड पार्ट। अगर मैं कॉपी पेस्ट कर रही होती तो मैं ये ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेती, मुझे बस क्या चेंजेस करने हैं इसमें, आई जस्ट हैव टू मेक चेंजेस, a को s बनाना है एंड 60 को 1 बनाना है, राइट?
सो मैं ये भी कर सकती थी, कॉपी पेस्टिंग। क्लियर? सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट इज ISDU10, सो ISDU10 लिखते हैं। सो ऑल्ट इक्वल टू IS, स्मॉल एस वी हैव ड्यू, ड्यू के लिए फिर से नोटेशन क्या आएगी, D डॉट डबल स्पेस देन 10 लिखना है। सो अंडरस्कोर 10 इज 2 डिजिट, सो मुझे ब्रैकेट्स लगाना पड़ेगा, देन आई राइट बार डबल स्पेस एक और स्पेस ताकि वो सबस्क्रिप्ट में चला जाए। देन दिस इज इक्वल टू 1.07 रेज़ टू द पावर 10 इंटू IA ड्यू, राइट? सो IA ड्यू मैं लिखूंगी नहीं दोबारा, व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट एंड आई दिस, ओके, बस A को कर देती हूँ, S को A कन्वर्ट कर देती हूँ, ओके। कॉपी पेस्ट से आर यू एबल टू राइट दिस IA ड्यू 10? गिव मी a yes in the chat room quickly. Copy paste से are you able to write this IA ड्यू 10? I have been repeating in my typing classes, you have to be well versed with copying pasting. This saves your time and that's what expected from you in the exam. आपको एक प्रेजेंटेबल आंसर चाहिए, विद इन द टाइम फ्रेम चाहिए, ठीक है? ओके, नाउ अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं, सो अगर आपको फ्रैक्शनल टर्म में करना है तो फ्रैक्शनल टर्म में कर लो, अगर आपको इसको भी IA के फॉर्म में करना है तो IA के फॉर्म में कर लो। तो मैं एक काम करती हूँ, इसको IA के फॉर्म में कर लेती हूँ बिकॉज मेरा कॉपिंग पेस्टिंग इजी होगा। मैं फ्रैक्शनल लिखने चलूंगी तो मेरा बहुत लेंथी प्रोसेस जाएगा, राइट? So I just copy the whole thing, I write equals to, I write the whole thing and IA ड्यू 10 is basically equal to my IA 10 into I. So मैं इसको हटा के पूरा A लिखूंगी and this is basically ये 10 मेरा बन जाएगा 11। Clear? And then I can tables book से values लूंगी तो I will write taking value from tables book and I can simply write the value. My final answer would be IS10 is equal to this, I copy paste, this I paste and I can simply write the value here. Okay, what is the value from tables book? It is 34.7391 and I also change this to 11. Okay, and this is coming out to 7312 and I can just bold this out. Clear? So this is how you use copy pasting while using this terms. क्योंकि अब आपको long question मिलेगा, so आपको इतना लंबा question मिलेगा, आपको IA बार इतनी बार लिखना पड़ जाएगा that it is not efficient or effective to write every time the same equation. Okay? So आपके copy paste, आपको copy paste बार बार भी ना करना पड़े. For example आपके पास already IS है आपके copy pasting में, so आप उस IS से सब कुछ लिख सकते हो, I बार A बार वाली नोटेशन भी लिख सकते हो, IA बार वाली नोटेशन भी लिख सकते हो और ये सब n बार वगैरह टाइप करने का टाइम तो बचेगा ना आपके पास। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। look Kshitij, depends on the calculations. For example आप बोल रहे हो कि therefore the answer is नहीं लिखना होता, if you are bolding out the answer, मैंने ये bolding out इसलिए सिखाया है ताकि आपको ये statement of conclusion ना लिखना पड़े, ठीक है? क्योंकि इससे क्या होगा, एग्जामिनर को आपको दिखना चाहिए कि योर आंसर इज दिस। क्या होता है कभी कभार अभी तो हम क्या करते हैं कि कैलकुलेशन करते हैं देन वी ब्रिंग आउट द फाइनल आंसर, बट कभी कभार क्या होता है अगर एक ही पार्ट में सब पार्ट दिए बिना आपसे दो वैल्यूज पूछ ली जाती हैं, सो आपका जो प्रीवियस वाला पहला वाला आंसर होता है वो कैलकुलेशंस में मगअप हो जाता है, राइट? सो उस केस में आपको बोल्ड आउट करना जरूरी है, एंड इफ यू आर नॉट बोल्डिंग आउट देन यू हैव टू राइट यस माय वैल्यू ऑफ डेल्टा इज दिस, ओके? एंड ये लिखने से अच्छा है कि therefore the answer is, if you are preferring the statement of conclusion still, so ये लिखना बेटर होता है the present value is this or the interest rate is this, और जो भी क्वेश्चन में आपको वर्डिंग्स के तौर पे बोला है this is this, okay? Otherwise bolding out is sufficient. इस पॉइंट पे तो sufficient है, CM1 में आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, okay? This is sufficient.
completed most of the notations of this chapter basically. अब लेवल एन्युइटीज और इंक्रीजिंग एन्युइटीज से आपकी नोटेशंस बेसिकली CM1 में स्टार्ट होती है, वो हमने कंप्लीट कर ली हैं. प्लीज ट्राई प्रैक्टिसिंग दीज नोटेशंस एट होम. ओके, कोई डाउट है इस नोटेशन में या अब तक की क्लास में किसी भी नोटेशन में कोई डाउट है? जनरल डाउट रिगार्डिंग टाइपिंग कि ये करना है या ये करना है, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो. गो फॉर द डाउट. इज देयर एनी डाउट? Okay, how do we mention when we are using values from calculator in linear interpolation? So look, either if they, देखो बहुत लंबा क्वेश्चन है, मार्क्स बहुत ज्यादा असाइंड है, तो you have to show the linear interpolation. Okay, अगर linear interpolation के मार्क्स नहीं मिल रहे, फॉर एग्जांपल 2 नंबर का क्वेश्चन है और कैलकुलेशंस भी काफी सारे हैं, तो linear interpolation is not relevant to show. So you can write using linear interpolation. Okay, आपने using linear interpolation लिख लिया, then examiner will know कि you are using the linear interpolation एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क करना है. ओके, बट अगेन डिपेंडेबल ऑन मार्क्स. अगर मार्क्स बहुत ज्यादा है सो यू हैव टू शो द कैलकुलेशंस फॉर योर लीनियर इंटरपोलेशन. बट अगर मार्क्स इतने नहीं है लीनियर इंटरपोलेशन के लिए, देन यू कैन सिंपली राइट यूजिंग द लीनियर इंटरपोलेशन एंड देन यू कैन यूज द वैल्यूज. क्लियर ध्रुव? एनी डाउट इन एनी नोटेशन गाइज? Quickly, we can just wrap up the class then. Okay, Kshitij, Mithun, Tanvi, any doubt? नोटेशन में कोई डाउट है किसी? यस, मैंने भव्य यही बोला था कि जब आप 60 बार लिख रहे हो तो बार जो है वो जीरो. लुक, देयर इज अ थिंग, जब हम लिख रहे हैं 60 बार, ओके, सो इक्वेशन एडिटर क्या इंटरप्रेट कर रहा है? आप बैकस्लैश किसके बाद लगा रहे हो? सिर्फ जीरो के बाद लगा रहे हो ना. सो इक्वेशन एडिटर इंटरप्रेट कर रहा है कि जीरो के ऊपर बार आएगा सिर्फ. ओके, सो इसीलिए आपको 60 के ऊपर ब्रैकेट लगाना है. ओके, अब देयर इज वन मोर थिंग, जब मैंने IA वाली चीज समझाई, मुझे IA में ब्रैकेट चाहिए, सो दैट्स व्हाई मैं डबल बार का यूज करूंगी, डबल ब्रैकेट्स का यूज करूंगी. क्लियर? डिजिट्स में जब मैं बार लगाती हूँ, कैप लगाती हूँ, डॉट लगाती हूँ, इन सब में मेरा डिजिट्स भी 2 डिजिट अगर है तो वो 2 टर्म्स की तरह काउंट होता है. ओके, मैंने बताया ना, इक्वेशन एडिटर में जब मैं बार, कैप, हैट लगाती हूँ तो वो मेरा डिजिट्स भी 2 डिजिट भी 2 टर्म्स की तरह काउंट होता है. बट अगर मैं जैसे एक्सपोनेंशियल के रेस्पेक्ट में लिखने लग गई या फिर मैं सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट में लिखने लग गई तो वो 2 डिजिट की तरह काउंट नहीं होगा. तब प्लस माइनस के साइन 2 डिजिट की तरह काउंट होते हैं. ओके, देन वी हैव look, this thing, for example, you need to write the formulas or not, that's completely dependable on number of marks. Okay, examiner's remote is basically एक example है, this is not the complete thing. Okay, so example है, so अगर आपको लगता है you are able to write the thing on time, so आप उसको लिख कर आओ, फॉर्मूला लिख कर आओ. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सिर्फ एन्युटी कैलकुलेट करनी है, सो ऑब्वियसली यू हैव टू राइट द फॉर्मूला, है ना. बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें मार्क्स बहुत कम असाइंड है, देन यू कैन थिंक ओके कि एन्युटीज का फॉर्मूला नहीं लिखते, बट आई वुड से कि फॉर्मूला लिखो. फॉर्मूला, इवन इफ यू आर नॉट राइटिंग द फॉर्मूला विद द टर्म्स, राइट द फॉर्मूला विद द नंबर्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप A का फॉर्मूला लिखते हो तो A का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस वी टू द पावर n. सो 1 माइनस वी टू द पावर n लिखने की जगह आप V की डायरेक्ट वैल्यू डाल के दिखा दो, बट एटलीस्ट शो समथिंग. एंड रिगार्डिंग द अपलोडिंग ऑफ क्लास, द क्लासेस आर बीइंग अपलोडेड ऑन YouTube ओनली, और कब अपलोड होगी तो इट टेक्स टाइम गाइज. सो बट आई विल से कि प्रायोरिटी पे क्लास को अपलोड कर दिया जाए. ओके गाइज,
Is it clear, Dhruv? Is it clear, Tanvi? Can we wrap up the class now? Okay, what about you, Dhruv? Is your doubt cleared?